differences. On the features, one 2 point I will all or give आपको, so you can write that particular in your features or as well as your significance. So like in terms of minerals, so Himalayas has most of the minerals presents there, but because of the difficult terrain वहाँ पर आपका क्या है, बहुत ज़्यादा माउंटेनियस रीजन होने के कारण अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है. बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर we are not having that particular kind of extraction of mineral in the Himalayan region like we have done in your पेनिनसुलर प्लेट्यू पार्ट. बिकॉज पेनिनसुलर प्लेट्यू पार्ट का टेरेन डिफिकल्टीज़ नहीं है, वहाँ पर इजीली एक्सट्रैक्शन हो सकता है. बट इन हिमालयस वी आर लैगिंग सम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी एंड देयर इज़ अ टेरेन प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट पर्टिकुलर थिंग्स और अंडर द सिग्निफिकेंस. आप सिग्निफिकेंस में देखते हैं एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर फीचर्स. तो आप फीचर्स में उसको लिख सकते हैं, ठीक है, अबाउट द मिनरल्स. सो नाउ विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस. ओके, सो आई विल टॉक अबाउट द वेरियस सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस. Okay, so in terms of significance we'll see all this particular thing, what are the various significance or the importance of Himalayas as such. So if you see, so Himalayas has all this particular importance. Number one is your geopolitical importance or geostrategic because of its location. So we have the geopolitical importance. Okay, geopolitical importance, and you can say as your strategic location importance. So we have the locational advantage. Then this Himalayas also provides some of the economic importance, or we have the economic benefits. Okay, this particular Himalayas only we have some of the important biodiversities region or also the ecological region. So this particular Himalayas has your ecological importance. Okay, there is one more thing you can talk about this particular physical importance or your geographical importance. So geopolitical include your geographical importance, which include your climates and other aspect. So we can talk about the climate and other aspect as such. So these are the main, there are various importance or the significance of Himalayas in terms of your geopoliticals. If we see, अगर geopolitics को देखेंगे तो Himalayas has your specific, Himalayas lies at the specific strategic location. So because of the strategic location of Himalayas, it is very difficult for the neighboring countries or the neighboring countries like China and Pakistan to comes and attack the India. तो आपका क्या है, this Himalayas become both the frontiers. One is a political frontiers and other is your natural frontiers. तो Himalayas act as your both. आपका क्या हो रहा है, आपके सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी, और ऑल्सो इट एक्ट्स एज योर नेचुरल फ्रंटियर. ओके, because it is not easier to pass the Himalayas rather than from those particular passes in this particular mountain. अगर passes को हटा दिया जाए तो आप कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, इंडिया में encroach नहीं कर सकते, आ नहीं सकते. So because of its strategic location, it will provide us your security benefit and also it acts as your natural frontier and it will reduces the infiltration. तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो भी infiltration है वो यहाँ पर होने से बच जाता है, ठीक है. So this is the some of the locational advantages in terms of your security and borders perspective. Okay, now that particular natural frontier, because it is act as a natural frontier as well, so it led जो भी आपका क्या हो रहा है, जो पर्टिकुलरली हवाएं आ रही है, those winds coming from the northern part of your northern continent like China and also your Russia, तो वो सारे के सारे जो कोल्ड एयर हैं उसको भी वो रोकता है. एंड बिकॉज ऑफ स्टॉपिंग दैट पर्टिकुलर कोल्ड एयर, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्पेशली राजस्थान एंड ऑल, ये वाले सेक्शन जो है और आपका ऊपर पंजाब, दैट विल बी other way around of there is no Himalayas, that all will be turned into the cold deserts. So कहीं ना कहीं आपका नेचुरल फ्रंटियर होने के कारण क्या हो रहा है, पूरे के पूरे उस एरिया पे रोक रहा है. सो देयर इज अ जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड ऑल्सो दिस पर्टिकुलर हिमालयस लाइज बिटवीन योर. तो अगर जियोपॉलिटिक्स में देखेंगे, सो दिस हिमालय कनेक्ट्स, अगर हिमालय को ही देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर हिमालय कनेक्ट योर सेंट्रल एशिया, कनेक्ट इंडिया विथ योर सेंट्रल एशिया. आपका इंडिया को कहीं ना कहीं अगर इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर मैप ऑफ इंडिया, so here is your Himalayan mountain and this particular is your Central Asia. So it will connect you with the Central Asia. It will give you greater access toward the Tibet and also your China. So it will connect with the Central Asia. It will connect with the Eastern and the Northern Asia. So North and Northeastern Asia.
सो आपका कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा कनेक्टिविटी यहीं से है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी इन अर्लियर टाइम्स देयर लाइज अ इम्पॉर्टेंट ट्रेड लिंक कॉल्ड एज योर सिल्क रूट विच इज़ नाउ ट्रेस्ड बाय द चाइना एंड डेवलपिंग एट एज योर वन बेल्ट वन रोड रूट्स। ठीक है, तो पूरा का पूरा हिमालय माउंटेन के ऊपर वाला रेंज है, वहाँ से वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। सो this particular Himalayas has the geopolitical significance in terms of connectivity. It provides connectivity to your both Central Asia and your North and Northeast Asia, and it is a strategic location in terms of it provides as a natural frontier for this particular security of your India. So these are the various geopolitical importance of this particular Himalayas. There are many more geopolitical importance in terms of tourism and other. Many of the countries want to invest money in the this particular Himalayan region for the tourism and other perspective. तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंडिया को बार बार बोला है, लाइक अर्लियर स्विट्जरलैंड एंड अदर कंट्रीज इन सेड कि आप क्या करें, हमको पैसा इन्वेस्ट करने दें, विल डेवलप दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर हिमालयस लाइक योर पर्टिकुलरली जैसा कि आपका पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड और वहाँ के जितने भी माउंटेनियस रीजन में देखते हैं, तो उस तरह से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स कम्स अंडर योर जियो पोलिटिकल थिंग्स कि आपका क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नाउ इट वॉज ये माना जा रहा है कि इन दिस पर्टिकुलर हिमालयन रीजन वी हैव द रिच रिसोर्सेज ऑफ CNG or compressed natural gas and oils, and also some of the coals will find some of the coals here, and because of that particular rich minerals all the countries in this particular region including your China, Pakistan and those countries like your Kazakhstan एंड अदर्स, उन लोग क्या कर रहे हैं, उस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी वहाँ पर आपस में वहाँ पर लगे हुए हैं। बट अगेन इंडिया बीइंग द पर्टिकुलरली उस पूरे लोकेशन में, सो इंडिया ऑलवेज हैव ए अपर हैंड ओवर दोज पर्टिकुलर नेशन। सो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट जियो पोलिटिकल रोल्स। आई विल गिव एवरीथिंग इन राइटिंग, आप वहाँ से रीड करेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स। नाउ विल सी वेरियस इकोनॉमिक बेनिफिट दिस पर्टिकुलर हिमालयस विल गिव। So if you talk about the economic benefit in terms of minerals, first of all I will talk about your minerals. So Himalayas, this particular region of Himalaya is home of some of the important minerals. Even we will find some of the oil reserves here. We will have the oils here, okay, and in the part of your Assam and the upper region, तो वहाँ पर हमने ऑलरेडी ऑयल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड स्टिल वी हैव द ऑयल रिजर्व्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सो वी हैव द ऑयल रिजर्व्स इन हिमालयाज। अब उसका एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है, बट वंस वो सारा का सारा हो जाएगा तो दे विल एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन। अगेन अपार्ट फ्रॉम ऑयल रिजर्व्स अगर देखा जाए, सो दिस पर्टिकुलर रीजन हैव योर इंपॉर्टेंट मिनरल कॉल्ड एंथ्रासाइट कोल, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। इंडिया में अगर देखेंगे सो यू विल नॉट फाइंड द एंथ्रासाइट कोल एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ हिमालयाज। तो हिमालयाज में आपको क्या मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एंथ्रासाइट कोल मिलता है हिमालय के रीजन में। अभी वहाँ से उसका लेकिन एक्सट्रैक्शन हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ अगेन आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, अदर कनेक्टिविटी एंड अदर इशूज। सो वी हैव द ऑयल रिजर्व्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन, वी हैव योर सम ऑफ द बेस्ट मिनरल्स इंक्लूडिंग योर एंथ्रासाइट कोल, एंड इन द अपर पार्ट ऑफ हिमालयज इन द ट्रांस हिमालयज रीजन, एंड उसके ऊपर देखेंगे तो इन दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव सम ऑफ द यूरेनियम फाइंड इन द उज्बेकिस्तान। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट कि आपका जैसे उज्बेकिस्तान में मिल रहा है तो विल ऑल्सो फाइंड इन सम ऑफ द पार्ट ऑफ लोअर तिब्बतन प्लेट्यू इन द अपर हिमालयाज। तो वहाँ पर भी आपका यूरेनियम एंड अदर मिनरल्स दे आर एक्सपेक्टिंग, अभी भी आपका वहाँ पर खोजा नहीं गया है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ योर ऑयल रिजर्व्स, योर पर्टिकुलरली कोल बेल्ट एंड ऑल्सो CNG, so your compressed natural gas or we can call it as natural gas। तो नेचुरल गैस का भी एक बहुत बड़ा एक हब है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इट प्रोवाइड अ वेरियस इकोनॉमिक बेनिफिट टू दिस पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द अपार्ट फ्रॉम मिनरल्स आई विल कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द टूरिज्म प्रोस्पेक्ट। टूरिज्म विल गिव यू मनी। सो इन टर्म्स ऑफ अगर देखेंगे टूरिज्म को, तो टूरिज्म कम्स अंडर योर सर्विस सेक्टर। अगेन हिमालयस, वहाँ का सीनिक ब्यूटी इतना अच्छा है बिकॉज ऑफ द पिक्चरस्क्यू लैंडस्केप एंड द प्रिस्टीन एटमॉस्फियर दैट अवर हिमालयस गिव्स अस। बिकॉज ऑफ दोज पर्टिकुलर थिंग हिमालयस ऑलवेज अट्रैक्ट द टूरिस्ट। तो वहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट बन सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग टूरिज्म वी हैव द वेरियस, अगर देखा जाएगा हिमालयस में इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म वी हैव द वेरियस हिल स्टेशंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन इंक्लूडिंग सम ऑफ द फेमस हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, गुलमर्ग, we have your Nainital, okay, we have Shimla, we have Kullu, we have Manali, so there are many more। so बहुत सारा आप देखेंगे तो क्या है, वहाँ पर there is a huge
tourism prospect or tourism industries will thrive in this particular region, provided we have the best of the facilities, including your resting and the hotels facilities and also some of the eateries and the food chains अगर वहाँ डेवलप होंगे. So we will मतलब हम लोगों का अगर पूरा का पूरा इकोनॉमी देखेंगे तो हिमालयस in terms of tourism will give you the huge economy. Okay, some of the famous valleys of the regions which include your Spiti Valley, we have your Nubra Valley, we have talked about the Chumbi Valley. So these are the various famous valleys and also some of the important biosphere or biodiversity rich region including your Nanda Devi and others are located in this region. So all those particular region extract lots and lots of tourism here. So आपका क्या होगा, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर ऑलरेडी अभी भी आ रहे हैं एंड अगर उसको अच्छे से डेवलप किया जाए, so we have one of the best tourism centers of the world in your particular Himalayan belt. So in the Himalayas we can develop your paragliding centers, we can develop and other centers including your, because of the various rivers are also there, so we can have the rafting centers, we can have the bungee jumpings and all. So आपका पूरा का पूरा एक ट्रांसपो अगर आप देखेंगे tourism prospect, so we'll see that particular prospect in this particular region of your Himalayas. So we have your geopolitical importance, we have the economic benefit in terms of your minerals, tourism. There are other benefit in terms of your forestry and the ecological things. So I will talk under this particular ecological importance, but you can talk about the forestry और आपका यहाँ पर क्या कर सकते हैं, you can talk about the agriculture as such. ठीक है, because of the cold weather and some of the slopes region, so वहाँ पर क्या हुआ, these are regions of Himalayas are good for the production of fruits और आपका जितने भी citrus fruit है उसका production के लिए बहुत ही important area है and also some of the fruits including your walnuts are also grown in this particular region of कश्मीर. तो वॉलनट्स आपका अखरोट जो है वो है इन कश्मीर. वी हैव द वन ऑफ द फाइनेस्ट वैराइटीज़ ऑफ सैफरन, जो आपका केसर होता है उसका फाइनेस्ट वैराइटी कॉल्ड योर जाफरन आर कल्टिवेटेड इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द वैली ऑफ कश्मीर ओवर द सॉइल्स कॉल्ड योर करेवा सॉइल. सो वी हैव द बेस्ट वैराइटी ऑफ योर fruits including this particular your walnut, you have your saffron. There is a apple or the apple orchards, we can develop various orchards including the apple orchards, we can have your there orange orchards. So where orchards can be developed over this particular region, ठीक है. And also if you talk about this particular Simla region, sorry, your Sikkim region, that become the organic hub also. So all the Himalayan region is especially important for your horticulture crops or horticulture production, horticulture. And because of the वहाँ पर जो आपका जो क्या है, बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन्स एंड ऑल्सो वहाँ पर जिस तरह से वेदर है, सो दैट विल बी अ गुड लोकेशनल थिंग्स फॉर द पेस्चरल डेवलपमेंट. मतलब आपका एनिमल हस्बेंड्री के लिए वो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो अपार्ट फ्रॉम हॉर्टिकल्चर देयर इज़ अ थ्राइव और एक बहुत अच्छा नेचर किसके लिए है, आपका हॉर्टिकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री. तो आपका जो भी आपका एनिमल प्रोडक्शन है उसके कारण वहाँ पर देखने को मिलता है. ठीक है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव द वेरियस डेवलपमेंट ऑफ वेरियस दुन्स. सो वी हमारे पास वहाँ पर क्या बहुत सारे दुन्स हैं. वी हैव द वेरियस बुग्याल्स एंड दिस ऑल दुन्स एंड बुग्याल्स आर नथिंग बट कॉल्ड एज योर ग्रासलैंड. सो आपके क्या है, वहाँ पर पूरे के पूरे ग्रासलैंड्स हैं. ठीक है, सो हिमालयस हैव वेरियस ग्रासलैंड एरिया विच आर गुड फॉर द फॉडर प्रोडक्शन. जितने भी वहाँ पर क्या करते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंटली फॉडर उगा सकते हैं. एंड वन ऑफ द फेमस फॉडर कॉल्ड एज योर टकोसी ग्रासेस. क्या बोलते हैं, टकोसी ग्रासेस आर ग्रोन इन दिस पर्टिकुलर रीजन. एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर हिमालयन रीजन आर योर बुग्याल्स in your Uttarakhand and your Himachal Pradesh area, Uttarakhand and Himachal Pradesh. We have Margs. So this Marg area again a grassland area. You can see in your Jammu Kashmir and Ladakh area. Okay, we have duns. These duns like including your Dehradun and other duns. So what are these particular duns? See कैसे बनता है आपका duns. We'll talk about this. Suppose this is your mountains. ये आपका क्या है, बहुत सारे mountains हैं. And in between this particular mountain there is a river flowing. Okay, and आपका क्या हो रहा है, माउंटेन को वो कट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन इफ आई ड्रॉ लाइक दिस वैली बिटवीन टू माउंटेन्स कॉल्ड एज योर स्ट्राइक वैली. उसको क्या बोला जाता है, स्ट्राइक वैली. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव वाटर्स. यहाँ पर क्या है, पूरा वाटर एक्यूमुलेट रहा है. इनिशियली रिवर कम्स एंड डिपॉजिट वहाँ पर. सो पूरा का पूरा वो एरिया विल टर्न लाइक समथिंग कॉल्ड लेक. तो इस एरिया में क्या होगा, एक लेक जैसा डेवलपमेंट होगा. बट विथ टाइम दिस पर्टिकुलर वाटर एबल टू कट द रिवर्स. और आपका यहाँ से क्या होगा, ये वाटर पूरा का पूरा ड्रेन हो जाएगा. एंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन वी आर लेफ्ट, ये जो रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन में हम लोग क्या बच जाएगा, हियर वी हैव द डिपॉजिट्स. जो यहाँ पर आपके डिपॉजिट रह जाएंगे उस पानी के नीचे जो भी थे सेडिमेंट्स. एंड दिस सेडिमेंटेड एरिया ये जो बन रहा है, दिस आर कॉल्ड एज योर दुन्स, मर्ग्स और बुग्याल्स. तो ये पूरा का पूरा रीजन जो बनेगा, दिस बिकम योर ग्रासलैंड रीजन एंड फेमस फॉर द फॉडर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉर द एनिमल हस्बेंड्री. सो वी कैन हैव द हॉर्टिकल्चर्स अलॉन्ग विद योर एनिमल हस्बेंड्री.
husbandry in this particular region. Okay, so horticulture we have your animal husbandry. Okay, so these are some of the significance or the importance in terms of economic benefit. We can talk about mineral tourism, forest agriculture, and also some of the important electricity production generation, because वहाँ पर रिवर्स हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आपका पावर प्रोडक्शन कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से. ओके, एंड इन द लद्दाख रीजन इनिशियली वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड विद द सोलर प्रोडक्शन, and also in this particular Himalayan region we have in Ladakh we have one of the importantest valley called Puga Valley, and in that particular Puga Valley we are now generating our geothermal energy. So I will talk about that also. Now we will talk about the ecological importance, and ecological importance in terms अगर देखा जाए, so हिमालय में अगर देखा जाएगा, so we have the rich varieties or the rich varieties of both flora, so plant types, there are many plant types वहाँ पर मिलेंगे आपको, and also fauna. So animal types and fauna अगर देखा जाए, so we have the rich variety of both. We have the rich variety of both flora and fauna in this particular region, जिसके कारण क्या हो रहा है, this particular region become a home of some of the important biodiversity region. So यहाँ पर बहुत ही important biodiversity region है, which is very much important for the ecology of this particular region. Recently we are hearing the news about the Assam flood, but that flood is a part of your ecology. आपका अगर असम के एरिया में वहाँ पर फ्लड नहीं आएगा तो all the region of your काजीरंगा and the particularly one horn rhinoceros वो वहाँ पर थ्राइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो रह नहीं पाएंगे उस एरिया में. तो दैट पर्टिकुलर फ्लड इज़ अ पार्ट ऑफ योर असम इकोलॉजी, बट क्या है, वो फ्लड का इंस्टेंसेस बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गया है, जो कि एक प्रॉब्लम का काम करता है, ठीक है. सो वी हैव दोज पर्टिकुलर रीजन एज अ वन ऑफ द फेमस बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स रीजन, एंड स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, जो आपके इन एंड अराउंड इंडिया है, एंड वन ऑफ देम लाइज इन योर ईस्टर्न हिमालयस. तो ईस्टर्न हिमालयस की बात करेंगे तो पूरा का पूरा वो क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन है, and that region includes some of the important biodiversity hotspots, including your Kaziranga National Park, Biosphere Reserve. So there is a, then we have your Manas, then we have your Povitra, we have very many more like Dibru Shokha, Dihang, Dibang, all the national parks and the wildlife biosphere reserves are located in this particular Himalayan region. In the upper part of Uttarakhand we have your Corbett National Park. Above that particular the Uttar Pradesh and your Uttarakhand border we have your Rajaji National Park. If we move towards the Himachal Pradesh and Uttarakhand, we will see valley of flower called Nanda Devi. So there are many biodiversity hot spots region are in this particular region. And if you talk about the various fauna and flora, in terms of fauna अगर आप animal types की बात करें, so we can see the snow leopard in this particular region, we have the brown bears in this particular region, we have the hangul, the state animals of your Kashmir. We will also see some of the important or the rare species including your flying squirrel, we will have Namdafa flying squirrel. So there are many more or many of your flora and fauna are in this particular in this region. That makes this particular region a biodiversity hotspot region, and also a region having the various ecological importance in terms of both. Some of the important medicinal plant आप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, आपका हर एक साल यहाँ पर कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स तो आपको 100% मिलते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ होम ऑफ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस मेडिसिनल हर्बल प्लांट्स एंड द होम गार्डन. सो आपका पूरा का पूरा अगर हिमालय देखेंगे सो इट हैज़ अ वेरियस इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है. जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आई विल गिव यू इन द राइटिंग्स, आप उसको पढ़ेंगे और वहाँ से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी अबाउट ऑल दिस थिंग, और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिर्फ नोट्स सारे के सारे फैक्ट्स को पढ़ लेना, सो दैट यू कैन राइट इन अ बेटर मैनर. ओके, सो दिस इज अबाउट द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फिजिकल एंड द geographical importance. So again I have already talked about this particular, how it act as a your climate barrier, how this particular Himalayas restrict this particular monsoonal wind to cross over the India. It will how this particular monsoonal wind or this particular Himalayas जो आपका क्या होता है, वेस्टर्लीज फ्लो होती है, वेस्टर्ली विंड विद द मॉइस्चर इन द विंटर टाइप्स. सो उसको क्या करते हैं, ये हिमालयन रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एंड दैट कॉज योर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑफ द विंटर रेनफॉल इन दिस पर्टिकुलर इंडिया. तो किस तरह से पूरा का पूरा हिमालय आपका इंपॉर्टेंस प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ योर इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ आपका
आपका फिजिकल और योर द जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिमालयन रेंज. और हिमालय का हमने सबसे वी हैव स्टार्टेड विद द ओरिजिन. वी हैव सीन किस तरह से फॉर्मेशन हुआ. वी टॉक्ड अबाउट दिस टू पर्टिकुलर डिवीजन. वी हैव सीन वेरियस फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हिमालयस. So you can talk about the features, you can talk about the significance, and also please remember one more thing, some of the volcanic stones or the volcanic rocks are found in this particular Himalayan region, especially in the Dras sector of Jammu and Kashmir. तो वहाँ पर आपको क्या मिला है, कुछ volcanic rock भी मिला है जिसको आप क्या करते हैं अपने फीचर्स में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. सो हिमालयस हैज ऑल दिस सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ योर इंडिया. तो ये पूरा का पूरा हमने हिमालय देख लिया है. जितना भी आपके पीएससी के लिए रिक्वायर्ड है इतना भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा. आई विल गिव यू दैट इन द राइटिंग्स एज वेल. तो आप उससे भी पढ़ेंगे एंड वॉच दिस लेक्चर 1 or 2 times. यू विल हैव द गुड नॉलेज अबाउट द हिमालयस बोथ फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस. इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है. इफ़ यू वांट टू रीड अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी से आप जाकर आप हिमालयस को एक बार रीड कर लेंगे. वहाँ से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा. ठीक है. एंड आपका मोस्टली चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू योर एनसीईआरटी, विथ रिस्पेक्ट टू योर खुलर. तो यहाँ पर सारा का सारा कवर कर लिया है. आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द वेरियस ट्राइब्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. आई विल टॉक पर्टिकुलरली अबाउट द ट्राइब्स इन वन ऑफ द लेक्चर कॉल्ड ट्राइब्स का. ठीक है. बट इनिशियली यू विल सी, सो इन जम्मू एंड कश्मीर प्लीज रिमेंबर 2 tribes, भोटियाज एंड गद्दीज. So we have the Gaddi tribes in this particular Jammu Kashmir region. Then moving towards your Uttarakhand, so you'll have the Bhotiyas, you have Garhwals tribes there in this particular Uttarakhand region. Moving toward the Sikkim and that particular region, we have the Lepcha tribes. We have the Apatani tribes in your Arunachal Pradesh. So I'll give the names of all the tribes. आपके राइटर्स में देंगे. अदर वे राउंड आई विल टेक अ पर्टिकुलर लेक्चर ऑन द ट्राइब्स ऑफ इंडिया. एक लेक्चर लेंगे, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा ट्राइब्स के बारे में फिर से बताएंगे. सो इनिशियली वी आर बिल्डिंग अपॉन द फाउंडेशंस. ठीक है. अभी हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ के वहाँ पर धीरे धीरे काम कर रहे हैं. वंस वी विल बिल्ड अपॉन द फाउंडेशन, देन विल स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग एसेज. अभी तो हम कर रहे हैं छोटे छोटे आंसर्स. देन आई विल टीच यू द इंटरलिंकिंग. वंस आई विल कंप्लीट विद द ज्योग्राफी, आपका ज्योग्राफी हो जाएगा. उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे इंटरलिंकिंग को पढ़ेंगे एक दिन. एंड आफ्टर डूइंग दैट पर्टिकुलर इंटरलिंकिंग प्रोसेस, once the lecture gets over, then we will be mastered in the long answers as well. तो अभी छोटे छोटे आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे. once we will complete the subject, we will take a one class for the complete interlinkages, और interlinkages साथ we will draw the answer writing classes as well. ठीक है. so this is all about this particular Himalayas, and this is from my side. This for particularly Indian geography, this is the last lecture for English medium and फॉर दिस पर्टिकुलर डेमो सेशन. आपका लेक्चर कंटिन्यूसली आपको बिलासपुर IAS अकेडमी के ऐप में ही मिल पाएगा, एंड विद ओनली फॉर दोज पर्टिकुलरली हु हैव रजिस्टर्ड विद अस. सो थैंक यू ऑल.